Hello everyone, welcome back to the coding destination. So my name is Chirag Vaishnav, and in the continuation of our DP series that we are continuing now, so the question that today we are going to solve is LCS, right? So it is LCS part 2 specifically. Part 1 is the previous video that was uploaded on this channel yesterday. So if you haven't watched it, do check it out. तो उसमें हमने क्या किया कि longest common subsequence का जो part 1 है वो हमने discuss किया है, that what was the approach and how we can go with the questions with some things, right? In this video what we'll do, we'll try to write the code and get a better idea of the implementation, that how we have to do, what are the base cases and all the rest of things we have discussed in this video. So do watch till end, it is going to be beneficial क्योंकि LCS is very important question, right? तो LCS longest common subsequence that we have discussed in the last video, right? Longest common subsequence तो बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है. इट इज़ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऑफ DP as well. तो also it is having various variants like edit, distance and a lot of questions are there that can be derived from particularly this question, right? So do check it out, है ना? तो do check it out like last video. And before starting I would like to discuss about Newton School. So Newton School has only provided me such an amazing opportunity to interact with you guys, to help you to grow together, right? So what about Newton School? Let's talk about Newton School. So Newton School is a platform that helps you to build your career in tech specifically, right? So it has a 6 months long curated course which helps you to become a full stack developer. And also Newton School is connected to a lot of companies. So that means that they help you getting placed as well. And the best thing about Newton School is that you have to pay after you got placed. Okay, so it's like an amazing opportunity. So do check it out. If you're having any doubts regarding anything, do go check out the link in the description. You will find all the links in the description where you can get all the details and enroll in this amazing opportunity. So do check it out. Now let's get started with the LCS. Example that we are going to take is that ABC wala. A B C D G H and string 2 मैं इधर ही लिख लेता हूँ AEDFHR. ठीक है, तो अब मैं ना लास्ट स्ट्रिंग से चलने वाला हूँ. तो इफ़ आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट, ठीक है, तो मैं दोनों के यहाँ पे चेक कर रहा हूँ. ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू चेक इज दैट यू विल चेक इज कि इफ़ बोथ द लेटर्स आर इक्वल. अगर लेटर इक्वल है ना, बिकॉज दैट अगेन थिंग आई वांट टू रिपीट अ थिंग, क्योंकि मैं लास्ट से चल रहा हूँ तो ऑर्डर विल बी फॉलोड, राइट? तो सेकंड कंडीशन की मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि आई एम फॉलोइंग द ऑर्डर. क्योंकि मैं पीछे दोनों स्ट्रिंग में ही पीछे से चल रहा हूँ. ऐसा तो है नहीं एक में आगे चल रहा हूँ एक में पीछे चल रहा हूँ. दोनों में पीछे से चल रहा हूँ तो ऑर्डर विल बी फॉलोड. सो दैट इज़ नॉट अ थिंग टू वरी अबाउट. द थिंग टू वरी अबाउट इज क्या एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं. ठीक है, तो H और R मैच नहीं कर रहे हैं. ठीक है, सो देन वी आर लेफ्ट विथ टू ऑप्शंस कि आइदर आई विल चेक ABCDG and ACDFHR और आई विल चेक, एक तो मैं ये चेक करूँगा और या तो मैं चेक करूँगा ABCDGH एंड ACDA इट्स AE, राइट? AEDFH. ठीक है, तो अब मैंने क्या किया कि या तो जैसे अब दोनों एलिमेंट मैच नहीं कर रहे हैं तो मेरे पास दो ऑप्शन है ना, कि या तो मेरा H इस सबसीक्वेंस में हो सकता है या तो मेरा R इस सबसीक्वेंस में हो सकता है. ठीक है, अगर जैसे लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन इट वंस मोर. ठीक है, जैसे अब मेरा अगर इक्वल हो गया तब तो मेरे सबसीक्वेंस में वो एलिमेंट आ रहा है. अगर इक्वल नहीं है तो फिर मेरे पास दो ऑप्शन है ना, कि या तो पहली सबसीक्वेंस का जो आखिरी एलिमेंट है उससे मेरा सबसीक्वेंस बन सकता है, या स्ट्रिंग सेकंड का जो मेरा आखिरी एलिमेंट है उससे सबसीक्वेंस बन सकता है. ठीक है, अगर मेरे पहले एलिमेंट से सबसीक्वेंस बन रहा है तो मैं ये नीचे वाला ऑप्शन चूज़ करूँगा. ठीक है, पहले एलिमेंट से मेरा अगर सबसीक्वेंस बन रहा है तो मैंने इस स्ट्रिंग को पूरा लिया और इस स्ट्रिंग को वापस कंपेयर कर रहा हूँ. तो जैसे, ठीक है, जैसे है ना, एंड जैसे फिर इसका अब मैं आगे समझाऊंगा तो आप धीरे धीरे और समझ जाएंगे. ठीक है, थर्ड फोर्थ इटरेशन तक आई एम 110% श्योर समझ आ ही जाएगा. एंड अगर मैं इसमें कंसिडर करता हूँ कि जो R एलिमेंट है उससे सबसीक्वेंस बन रहा है, तो मैंने क्या किया कि ऊपर से एक एलिमेंट हटा दिया कि मैंने H नहीं लिया और फिर R को ले लिया. ठीक है, तो इट इज़ नथिंग बट लाइक द रिकर्सिव में हमारे पास जो दो अप्रोच होती है कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग में एक पॉइंट पे हमारे पास कितने ऑप्शंस है. यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस है, या तो वो स्ट्रिंग में या तो एलिमेंट सबसीक्वेंस है या सबसीक्वेंस में नहीं है. ठीक है, दो ही ऑप्शंस है मेरे पास हर एलिमेंट के लिए, या तो वो सबसीक्वेंस में है या सबसीक्वेंस में नहीं है. तो फर्स्ट में मैंने चेक किया कि R इज़ इन द सबसीक्वेंस, है ना, एंड H इज़ नॉट.
एंड सेकेंड में मैंने चेक किया एच इज़ इन द सबसिक्वेंस एंड आर इज़ नॉट, ठीक है। तो अभी हम यहाँ तक आ गए, है ना। तो जस्ट लेट मी पुट इट इन अ बेटर ग्राफ, राइट। मैं इसको एक अच्छे से सुंदर सुंदर ग्राफ में बना देता हूँ, सो इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे, राइट। तो इसको फट बना दे रहे हैं हम। तो ये हमारे जैसे एल सी का फंक्शन है, फॉर ए बी सी डी जी एच, ए बी सी डी जी एच, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज ए ई डी एफ एच आर, ए ई डी एफ एच आर, राइट। तो अब मैंने क्या किया कि फर्स्ट एंड सेकेंड मेरे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। तो लेफ्ट में तो मैं क्या कर रहा हूँ कि लेफ्ट का एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूँ, और राइट में क्या कर रहा हूँ कि राइट का एलिमेंट कंसीडर कर रहा हूँ। तो अगर मैं लेफ्ट का एलिमेंट कंसीडर करता हूँ तो मेरी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, ए बी सी डी जी एच, मैंने एच कंसीडर किया, एंड ए ई डी एफ एच आर हटा दिया। क्यों मैंने कंसीडर किया, कंसिडरिंग लेफ्ट, राइट। एंड सिमिलरली यहाँ पे मैं कर दूंगा कंसिडर राइट। तो अगर मैं राइट कंसिडर करता हूँ तो मुझे पहली वाली स्ट्रिंग का आखिरी एलिमेंट हटाना पड़ेगा, सी डी जी, तो हटा दिया एच, एंड ए ई डी एफ एच आर, राइट। तो अब मैं यहाँ चला गया। अब मेरे पास वापस दो ऑप्शन है, तो अब जैसे अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है। तो अगर मेरे लास्ट एलिमेंट इक्वल है, लास्ट लेटर्स इक्वल है, तो ये तो हमारा फर्स्ट केस था। सबसे पहले ही हमें ये चेक करना था कि अगर मेरे आखिरी एलिमेंट बरोबर हैं तब तो वो स्ट्रिंग में है ही है ना। तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट +1, आंसर में +1 कर दूंगा, दोनों स्ट्रिंग से एक एक एलिमेंट हटा दूंगा, ए बी सी डी जी एंड ए ई डी एफ, राइट। और अब इसमें क्योंकि अनइक्वल है तो वापस मैं लेफ्ट और राइट की कंडीशन में जाऊंगा, ए बी सी डी, तो इसमें लेफ्ट में तो मैंने कंसिडर कर लिया कि जी है, और राइट हटा दिया, तो ए ई डी एफ एच, और फिर राइट में मैंने क्या किया, राइट कंसिडर किया, लेफ्ट हटा दिया, ए बी सी डी लेफ्ट हटा दिया, एंड ए ई डी एफ एच आर, ठीक है। तो अब जैसे वो अब वापस सिचुएशन है तो वापस मैं लास्ट कंपेयर करूँगा, ठीक है। तो अब लास्ट वापस अनइक्वल है तो वापस मैं एक हटा दूंगा, ठीक है। तो इफ़ यू आर गोइंग टू सी ना कि अगर मैं यहाँ से अगर मैं जी हटा देता हूँ, अगर मैं राइट वाला कंसिडर, ठीक है, अगर मैं जी हटा देता हूँ, ठीक है, तो मेरी स्ट्रिंग क्या बन जाएगी, ए बी सी डी, एक स्ट्रिंग तो मेरी ये बन जाएगी। और यहाँ से मैं एफ़ हटा देता हूँ, ठीक है, और एफ़ कंसिडर करता हूँ, तो ए ई डी एफ, ठीक है। अब उसकी अगली इटरेशन में मैं वापस से ही राइट कंसिडर, लेफ़्ट नहीं कंसिडर करता, मतलब अगर मैं लेफ़्ट कंसिडर कर देता हूँ, राइट हटा देता हूँ, है ना, तो मेरी क्या बन जाएगी, ए बी सी डी और ए ई डी, तो वापस डी से डी मैच कर गया, ठीक है। सिमिलरली ए से ए भी मैच कर जाएगा आगे आने वाली इटरेशन में। सो दिस इज़ हाउ वी विल एंड अप गेटिंग ए डी एंड एच, एंड दिस वॉज द थिंग दैट वी डिस्कस्ड, राइट। सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। अगर नहीं आया तो लेट मी टेक जस्ट वन मोर एग्जाम्पल, उसकी हेल्प से आपको होपफुली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो लेट्स जस्ट टेक एल सी एस ऑफ ए एक्स वाई टी एंड ए वाई जेड एन एक्स, राइट। तो व्हाट हैपेंड, राइट, हीरा, है ना। तो अब जैसे लेफ्ट में कंसीडर किया तो मेरी स्ट्रिंग क्या है, ए एक्स वाई टी, राइट वाली क्या है, ए वाई जेड। अब मैं अगर राइट कंसीडर किया तो मेरी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, ए एक्स वाई ए वाई जेड एक्स, ठीक है। अब इसमें वापस मैंने लेफ्ट कंसीडर किया तो मेरी क्या इक्वेशन हो गई, ए एक्स वाई टी, और मेरे राइट क्या हो गई, राइट कंसीडर ए एंड ए वाई, राइट। अब और हाँ, ठीक है, और इसमें जैसे मैंने लेफ़्ट कंसीडर किया, ठीक है, तो मेरी क्या इक्वेशन हो गई, ए एक्स वाई ए वाई जेड, और अच्छा सिमिलरली इसमें सॉरी, है ना, जस्ट मुझे अच्छे से लिखने दीजिए, ये से यहाँ पे अगर मैंने लेफ़्ट कंसीडर किया तो ए एक्स वाई टी एंड ए वाई, अगर मैं राइट कंसीडर करता हूँ तो ए एक्स वाई एंड ए वाई, ठीक है, जैसे ये राइट कंसीडर किया। तो यहाँ पे तो जैसे अब जैसे इसमें कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे मूव करेंगे। अब जैसे इसमें मैं यहाँ पे मैंने लेफ़्ट कंसीडर किया था, अब यहाँ पे मैं राइट, यहाँ मैंने लेफ़्ट कंसीडर किया था, अब यहाँ पे मैं राइट कंसीडर करूँगा। अगर मैं राइट कंसीडर करता हूँ तो ए एक्स एंड ए वाई जेड एक्स, ठीक है। तो
अब जैसे सिमिलरली जैसे भी अब इसमें जाएंगे तो यू कैन सी के वाई और वाई यहाँ पे मुझे मिल गए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं काउंट 1 कर दूंगा, जब इसका नीचे वाला इटरेशन होगा तो उसमें क्या होगा, वो ए एक्स और ए में चेक करेगा और मेरा काउंट 1 हो जाएगा। सिमिलरली जब मैं यहाँ जाऊँगा तो यहाँ पे भी मेरा क्या हो जाएगा, ए और ए वाई जेड में चेक करेगा और मेरा काउंट 1 हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रॉम बोथ द थिंग्स मेरे पास क्या आ जाएगा कॉमन, जो हमें दिख भी रहा था, तो मेरा कॉमन आ जाएगा मेरा ए और वाई, ए और वाई मेरा कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो एक और चीज़ जो हमें देखने को मिल रही है कि मुझे यहाँ से ए और वाई मिल रहा है, बट अगर मैं इनिशियल डेफिनेशन से देखूँ तो मेरे पास एलिमेंट्स क्या है, ए एक्स वाई टी एंड ए वाई जेड एक्स, लाइक ए एक्स वाई टी एंड ए वाई जेड एक्स, ए वाई जेड एंड एक्स। तो अगर मैं मेरी लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की डेफिनेशन से देखूं तो पहले क्या होना चाहिए, एलिमेंट्स कॉमन, ए है, हाँ है, वाई वाई है, हाँ है, एक्स एक्स है, हाँ है। अब मुझे दूसरी चीज़ क्या देखनी थी, ऑर्डर मैटर करना चाहिए। क्या ए एक्स के बाद है, हाँ ए एक्स के बाद है। क्या ए वाई के बाद है, हाँ ए वाई के बाद है, ठीक है। तो चीज़ क्या हो रही थी यहाँ पे, पर क्या एक्स वाई के बाद है, नहीं, वाई एक्स के बाद है और एक्स वाई के बाद है, तो इन दो में ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है ना। तो चीज़ क्या होगी यहाँ पे कि आई विल एंड अप गेटिंग 2 रिजल्ट्स, आइदर ए एक्स और ए वाई, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस मुझे क्या मिलेगा, जैसे यहाँ पे मुझे x कॉमन मिल गया था, ठीक है, एज यू कैन सी। तो यहाँ पे x और फिर a, तो मुझे यहाँ इस आंसर से मिलेगा ax, फिर यहाँ पे जैसे मुझे पहले मुझे मिल गया y, फिर मुझे मिलेगा a, ठीक है, इन दोनों की हेल्प से। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा ay, ठीक है। तो द थिंग इज दैट हाउ दिस एल्गोरिथम वर्क, ये मुझे ए एक्स वाई नहीं देगी, क्यों, मैंने आपको पहले बोला था पीछे से चल रहे हैं तो ऑर्डर ऑलरेडी फॉलोड है, तो जो ऑलरेडी ऑर्डर में आएगा ही नहीं, तो कोई भी मुझे ए एक्स वाई नहीं देगा, आइदर ए एक्स और ए वाई, दोनों की लेंथ इक्वल है। तो इफ विल टेक मैक्सिमम आउट ऑफ इट, बोथ विल बी 2,2, सो वी विल गेट आंसर, एंड अप हैविंग 2, ठीक है। सो दिस इज हाउ द अप्रोच इज गोइंग टू वर्क। नाउ लेट मी कोड इट क्विकली। ओके, सो हियर वी आर विद द कंपाइलर, सो आई विल जस्ट राइट द कोड। तो बॉटम अप अप्रोच रहने वाली है, तो मैं क्या करूँगा कि पहले एक डी पी इनिशलाइज कर दूंगा 1001 एंड साइज इज जस्ट लाइक रेंडम साइज दे देते हैं इसको, ओके। एंड वी हैव इनिशलाइज द डी पी। अब ये मेरा मेन फंक्शन रहने वाला है, तो मेन फंक्शन में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो डी पी मैंने इनिशलाइज़ करी थी, डी पी मैंने बनाई थी, उसको इनिशलाइज़ कर दूँगा मैं साइज़ ऑफ डी पी -1 से, हर एलिमेंट को -1 साइज़ दे दिया है, ठीक है। अब इंट x इज इक्वल्स टू s1 डॉट साइज एंड इंट y इज इक्वल्स टू s2 डॉट साइज, s1 डॉट साइज और s2 डॉट साइज हमने ले लिया है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कॉल द मेन फंक्शन, रिटर्न lcs util, हम फंक्शन का नाम दे देते हैं, एंड द थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज x y s1 एंड s2, ओके। एंड एज इट इज़ 0 बेस्ड इंडेक्सिंग, तो हमें यहाँ पे -1 करना पड़ेगा, राइट। तो ये अब हमें आंसर ला के देगा। तो अब इसको बनाते कि भाई तू आंसर कैसे लाएगा हमारे लिए। तो द थिंग दैट यू हैव डिस्कस्ड इज़ वेरी सिंपल, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया है वही हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो फटफट लेट मी राइट द कोड, string s1 string s2, okay, and here I have written the code. Now as I have written the code, the first thing that is to check is कि अगर कोई string मेरी empty हो गई, अगर मेरी कोई स्ट्रिंग एम्प्टी हो गई तब तो कोई मतलब ही नहीं है, तब तो अगर एक स्ट्रिंग एम्प्टी हो गई तो उसके आगे कोई लेटर है ही नहीं, तो कॉमन सबसीक्वेंस बन ही नहीं सकता उसके आगे, राइट। तो उस केस में रिटर्न 0 कर देना है। तो अगर x इज इक्वल्स टू -1 और y इज इक्वल्स टू -1, राइट, इन दैट केस रिटर्न 0, ठीक है। अब उसके बाद मुझे चेक करना है कि जो DP है, बिकॉज आई एम यूजिंग बॉटम अप अप्रोच, राइट। तो बॉटम अप में क्या होता है कि अगर मेरा रिजल्ट पहले से स्टोर्ड है देन आई डोंट हैव टू कैलकुलेट इट, राइट। तो मैं क्या कर दूंगा कि इफ़ DP ऑफ x, y इज़ नॉट इक्वल टू -1, मतलब इनिशलाइज्ड नहीं है, मतलब इनिशलाइज होने के बाद चेंज हो रखी है, ठीक है, तब रिटर्न क्या कर देना, DP ऑफ x, y, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वो कंडीशन लिख दी है। तो अभी तक क्या हो जाएगा कि हमारे पास कंडीशंस चेक होके आ जाएगी। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, नाउ अब हमारा मेन गेम है चेकिंग का, कि अब अगर s1 ऑफ x इज इक्वल्स टू s2 ऑफ y, अगर मेरा s1 ऑफ x बराबर s2 ऑफ y, मतलब जो, क्योंकि मैंने कहाँ शुरू किया, आखिरी एलिमेंट से शुरू किया, यहाँ पे मैंने पास क्या किया है, स्ट्रिंग लेंथ -1 पास की है, मतलब दोनों का आखिरी एलिमेंट है।
तो अगर इक्वल है तो मुझे क्या करना है, नथिंग, बस एक ऐड कर देना रिजल्ट में और वही वापस फंक्शन कॉल करना है -1 पे, राइट। तो रिटर्न डी पी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 1 प्लस एल सी एस यूटिल x-1 कॉमा y-1 कॉमा s1 कॉमा s2, राइट। ये मुझे फंक्शन कॉल कर देना है। यहाँ तो मैंने रिटर्न कर दिया। अब अगर इक्वल नहीं है, तो क्या कंडीशन बन रही थी हमारी, एक बार लेफ़्ट को कंसिडर करो, एक बार राइट को कंसिडर करो। तो इंट लेफ़्ट में लेफ़्ट को कंसिडर कर रहा हूँ, तो लेफ़्ट को कंसिडर करने के लिए हमारा फंक्शन क्या आ जाएगा, एल सी एस यूटिल। अब इसमें क्या दूंगा, अगर मैं लेफ़्ट को कंसिडर कर रहा हूँ तो लेफ़्ट तो कंसिडर है तो x तो आएगा, y में से एक हट जाएगा, ठीक है, y में से एक हट गया, s1 कॉमा s2। सिमिलरली अगर मैं राइट को कंसिडर कर रहा हूँ तो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू शुड हैपन, तो एल सी एस यूटिल मेरा रहने वाला है, तो x कॉमा, तो अगर मैं लेफ़्ट को कंसिडर राइट को कंसिडर कर रहा हूँ तो लेफ़्ट हट जाएगा, x-1 कॉमा y कॉमा s1 कॉमा s2, राइट। अब मुझे क्या करना है कि मैंने दोनों से कैलकुलेट कर लिया लेफ़्ट और राइट मेरे कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, तो डी पी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ लेफ़्ट कॉमा राइट। तो ये डी पी ऑफ में स्टोर कर लिया है मैंने, एंड जस्ट रिटर्न डी पी ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क। तो जब मेरी इक्वल आएंगे तो वो +1 करता जाएगा रिजल्ट में, एंड एट द एंड वी विल गेट द रिजल्ट। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। कोड छोटा है, अप्रोच अच्छी है, बट क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, इसलिए मैंने ज़्यादा लंबी वीडियो बनाई, इतना टाइम इन्वेस्ट किया। सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे गाइज। तो इसको प्रैक्टिस करना, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू गिव द थम्स अप, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, and if you like the Newton School project, do enroll in it. So thanks for watching.